Hello my dear students, this is Swati Chawla. I welcome all of you on my YouTube channel and the series of class 11th and 12th Computer Science with Python. So in this video, we are going to discuss a very interesting output based question and these are very important according to your exam point of view. और output based questions को solve करने का simple सा एक method है. अगर आपके concepts एकदम clear है, you can solve these type of questions within seconds. So, बिना देरी किए करते हैं वीडियो की शुरुआत. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल एंड नॉट सब्सक्राइब्ड इट येट, तो फटाफट से सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे. सो नाउ विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो. So I hope now you are ready to make your concepts clear and solve this question with me. अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले the very first thing we should understand the flow of control. एक एक स्टेटमेंट का मीनिंग ध्यान से देखेंगे ताकि जब हम उसको सॉल्व करें, इसका आउटपुट फाइंड आउट करें तो कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम ना आए. Now see this first statement, S equals to CBSE Digital India. This is a string. यहाँ पर मुझे एक वेरिएबल s गिवन है, दैट मीन्स दिस स्ट्रिंग हैज बीन असाइन्ड टू वेरिएबल s. जो आपके आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस हो, चाहे वो स्ट्रिंग पर बेस्ड हो और फ्रॉम लिस्ट, द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गिव द इंडेक्सिंग टू ईच एंड एवरी कैरेक्टर. और अगर लिस्ट के केस में तो इंडेक्सिंग हम करेंगे एलिमेंट वाइज, राइट. अब नेक्स्ट जो मुझे स्टेट गिवन है दैट इज फॉर लूप. अब फॉर आई इन रेंज length of s minus 1. Length function will count total number of characters in my string. So अगर मैं CBSE Digital India के characters count करूं तो these are total 18 characters. तो indexing I have already done from 0 to 17. तो total characters are 18, right? अब जो range function मुझे start करना है that is from length of s minus 1. Length of string is 18. 18 minus 1, 17. तो दैट मीन्स जो मुझे वन बाय वन कैरेक्टर्स ट्रेवर्स करने दैट विल बी इन द रिवर्स ऑर्डर. आई विल स्टार्ट फ्रॉम 17. नाउ स्टेप वैल्यू -1, दैट मीन्स 17 -1, 16 -1, 15 लाइक दिस. सो हमें इस तरीके से मूव करना है, राइट. और स्टॉप वैल्यू मुझे क्या गिवन है, 0. दिस इज 0. और ये चीज मुझे पता है कि जो मेरा रेंज फंक्शन है, इन दैट वी आर हैविंग 3 आर्ग्यूमेंट्स, स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू एंड स्टेप वैल्यू. स्टॉप वैल्यू में क्या गिवन है बेटा, 0. तो दिस मीन्स स्टॉप वैल्यू विल नॉट गेट इंक्लूडेड. तो ये कम तक चलेगा. तो अगर मैं बात करूं तो मुझे जो कैरेक्टर्स ट्रेवर्स करने हैं दैट इज फ्रॉम 1 to 17 और यू कैन सी इन द रिवर्स डायरेक्शन फ्रॉम 17 to 1, राइट. आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर कि हमने 0 को क्यों स्किप किया. स्टॉप वैल्यू है तो लास्ट वैल्यू विल नॉट गेट इंक्लूडेड. स्टार्ट कहां से करना है, लेंथ ऑफ s -1, लेंथ ऑफ s इज 18, 18 -1, 17 एंड स्टेप वैल्यू इज -1. सो 17 -1, 16 -1, 15 इस तरीके से. अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट पर. इनसाइड द फॉर लूप वी आर हैविंग if and elif, right. Now say this, first of all this condition will get checked. Now we will be having two possibilities, either my condition is true or my condition will be false. If my condition is true, so this print function will get executed and remaining conditions, remaining statements will get skipped. If this condition is false, so then second condition will get checked. Now again we will be having two possibilities, either my second condition is true or my second condition is false. If my second condition is true, so again in this we are having one if statement. Now if this condition is true, we have to check this condition also. If this is true, means this condition is true, we will execute this statement. And if this condition is false, इसके corresponding मुझे else part given नहीं है. तो what does this mean? कि आपने कोई भी statement को execute नहीं करना है उस particular character के लिए. Now at the end we are having else part. Else means if both the conditions are false, so then at the end else part will get executed, right. I think this flow of control is very much clear to you now. अब हम इसको solve करना start करेंगे. तो we will start from this last character, right.
For I in range, length of S is 18 minus 1, that means 17. So very first character that we will traverse is at index 17, this is A, right? इस A को ट्रेवर्स करेंगे सबसे पहले. नाउ सी दिस, इफ S ऑफ I की वैल्यू मेरी इंडेक्स वाली चलेंगी, राइट? इफ S ऑफ 17 डॉट इज अपर, जो A कैरेक्टर है, इज अपर फंक्शन विल चेक वेदर माय कैरेक्टर इज इन अपर केस और नॉट. दिस A इज नॉट इन अपर केस, दैट मीन्स कंडीशन इज फॉल्स. तो दिस नेक्स्ट कंडीशन विल गेट चेक. इफ I मॉड्यूलस 2, I में वैल्यू मेरे पास है इंडेक्स की, दैट मीन्स 17. So if I will write it here, 17 modulus 2 double equals to 0. This condition is false. This modulus operator will give me the remainder. So अगर मैं divide करूंगी 17 को 2 से, तो मेरे पास remainder 0 नहीं आएगा. ये condition भी false. So if both the conditions are false, तो that means else part will get executed. Else part में मुझे क्या print कराना है? At the rate. So I am writing my answer here. जो values actual print होंगी, that is at the rate. आई थिंक यहाँ पर कंप्लीट नहीं आएगा, तो आई एम राइटिंग इट हियर, दैट इज एट द रेट, राइट? अब इसी तरीके से हमारी नेक्स्ट वैल्यू के लिए चेक होगा. नेक्स्ट मेरे पास आई की वैल्यू हो जाएगी 16, राइट? बिकॉज स्टेप वैल्यू इज -1, तो 17 - 1 16. नाउ सी हियर, एट 16 वी आर हैविंग स्मॉल आई, तो दिस इज अपर कंडीशन अगेन false because this I is not in uppercase. Then second condition will get checked. And if I modulus 2, this time value of I is 16 and 16 modulus 2 double equals to 0, this condition is true. So that means we have to check this condition also. If S of I, that means S के 16 इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर है I, डॉट इज लोअर, बिल्कुल ट्रू है, इज लोअर है मेरा, ये कैरेक्टर लोअर केस में है, तो दैट मीन्स आई हैव टू एग्जीक्यूट दिस कंडीशन. सो S ऑफ I डॉट अपर, दैट मीन्स इस I को मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगी, अपर केस में. तो मेरे पास सेकेंड कैरेक्टर भी आ गया, दैट इज कैपिटल I. Now next character we will pick at index 15, that is D, right? Again is upper case means upper case में नहीं है, तो is upper function will return false. So then this condition will get checked. This condition is false. 15 modulus 2, I की वैल्यू मेरे पास है 15 and 15 modulus 2 double equals to 0. This condition is false. So that means else part will get executed. तो अब मुझे क्या प्रिंट कराना है, at the rate. और ये जो एंड आर्ग्यूमेंट गिवन है, व्हाट डज दिस मीन, कि जो हमें नेक्स्ट कैरेक्टर प्रिंट करा रही है, इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग इट इन द नेक्स्ट लाइन, वो उसी के साथ में प्रिंट होगा, राइट? नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए. नेक्स्ट आई की वैल्यू होगी 14, राइट? और 14th इंडेक्स पर मेरे पास कैरेक्टर है एन. अब इज अपर कंडीशन फॉल्स बिकॉज एन इज नॉट इन अपर केस. I modulus 2, I is 14. 14 modulus 2 double equals to 0. This time this condition is true. Because when we are going to divide 14 with 2, my remainder will be 0. अब इस condition को check करेंगे. If S of I dot is lower case में है, तो that means this condition is also true. अब true है तो मुझे उसको किस में convert करना है, upper case में. और मेरे पास character क्या था, small n, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया अपर केस में. नाउ इट इज कैपिटल एन, राइट? इज अपर फंक्शन विल चेक वेदर माय कैरेक्टर इज इन अपर केस और नॉट. अपर फंक्शन विल कन्वर्ट माय कैरेक्टर इनटू द अपर केस, राइट? अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर पे, दैट इज 13. अब 13 पर मुझे गिवन है दिस इज कैपिटल आई, राइट? सीबीएसई डिजिटल इंडिया, सो दिस आई इज कैपिटल. ओके, सो अब नेक्स्ट जो है मेरे पास एस आई डॉट इज अपर, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है, अपर केस में है. अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, लोअर केस में. तो द कैपिटल आई विल गेट कन्वर्टेड इनटू स्मॉल आई. नेक्स्ट आ जाते हैं 12th इंडेक्स पर, दैट इज ब्लैंक स्पेस. इफ एस आई डॉट इज अपर, दिस विल रिटर्न फॉल्स, दिस कंडीशन इज फॉल्स. आई मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0. बहुत ध्यान से देखना इसको. द वैल्यू ऑफ आई इज 12. 12 मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0 कंडीशन ट्रू. तो इफ पार्ट की कंडीशन चेक होगी. इफ एस ऑफ आई डॉट इज लोअर कंडीशन फॉल्स. इसका एल्स पार्ट नहीं गिवन, तो दैट मीन्स
इस पार्टिकुलर स्पेस कैरेक्टर के लिए कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी जिसको मैं प्रिंट करा सकूं, राइट। अगर ये एक एल्स पार्ट इस इफ के कॉरेस्पॉन्डिंग होता तो डेफिनेटली वो स्टेटमेंट मेरी एग्जीक्यूट होती, राइट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज 11। आई थिंक अब आपको क्लियर हो रहा है, दिस इज माई स्मॉल एल, डिजिटल इंडिया, राइट। स्मॉल एल is upper condition, false because this is not in upper case. Next is I modulus 2, value of I is 11. 11 modulus 2 0 condition, false. So that means else part will get executed. तो यहाँ पर मुझे क्या प्रिंट कर देना चाहिए, at the rate, right? Next हम आ जाते हैं 10th इंडेक्स पर। यहाँ पर मेरे पास है small a, is upper condition, false. I modulus 2, I की वैल्यू 10, 10 modulus 2 double equals to 0, condition true. क्योंकि जब हम 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, रिमाइंडर विल बी 0, तो दिस कंडीशन इज ट्रू। नाउ दिस कंडीशन विल गेट चेक इफ s ऑफ i डॉट इज लोअर, a मेरा इज लोअर, कंडीशन ट्रू, लोअर केस में है, तो मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, अपर केस में, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैरेक्टर, दैट इज t। अब इज अपर, कंडीशन फॉल्स, i मॉड्यूलस 2, वैल्यू ऑफ दिस मीन्स जो कैरेक्टर है 9th इंडेक्स पर, दैट इज t, और इसका इंडेक्स है 9, 9 मॉड्यूलस 2 0, कंडीशन फॉल्स, तो दैट मीन्स अगेन एल्स पार्ट विल गेट एग्जीक्यूटेड, तो अगेन आई हैव टू प्रिंट दिस एट द रेट, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट टाइम 8, दिस इज स्मॉल i, डिजिटल इंडिया, राइट। स्मॉल i इज अपर, कंडीशन फॉल्स, दिस स्मॉल i इज एट इंडेक्स 8, तो दैट मीन्स 8 मॉड्यूलस 2 0, कंडीशन ट्रू, तो si डॉट इज लोअर भी ट्रू है, दिस इज इन स्मॉल केस, तो मुझे इसको किस में करना है, कैपिटल केस, अपर केस में, राइट। नाउ नेक्स्ट दैट इज एट इंडेक्स 7, दिस इज स्मॉल g। अब स्मॉल g की अगर मैं बात करूं तो इज अपर, दिस फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स, 7 मॉड्यूलस 2 0, कंडीशन फॉल्स, तो दैट मीन्स एल्स पार्ट विल गेट एग्जीक्यूटेड। अब कैपिटल I के बाद क्या प्रिंट होगा, एट द रेट। नाउ नेक्स्ट इंडेक्स 6 इंडेक्स पर है मेरे पास स्मॉल i इज अपर, दिस कंडीशन फॉल्स, 6 मॉड्यूलस 2 0, कंडीशन ट्रू, तो इज लोअर, दिस इज आल्सो ट्रू, दिस i इज इन लोअर केस। अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, अपर केस में, तो आई एम राइटिंग इट हियर कैपिटल I। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर पे, दैट इज d, इंडेक्स 5। अब इंडेक्स 5 पर कैपिटल D है बेटा, तो दैट मीन्स दिस टाइम माय फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, इज अपर, दिस विल रिटर्न ट्रू, तो si डॉट लोअर, तो दैट मीन्स इस कैपिटल D को मैं किस में कन्वर्ट कर दूं, लोअर केस, राइट। नाउ दिस इज स्पेस एट इंडेक्स 4, डॉट इज अपर फंक्शन, दिस कंडीशन इज फॉल्स, वैल्यू ऑफ i हियर इज 4, 4 मॉड्यूलस 2 0, कंडीशन ट्रू। अब इफ में आ जाओ, दिस कंडीशन इज फॉल्स, लोअर केस में नहीं है, एल्स पार्ट मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं गिवन, तो दैट मीन्स कोई स्टेटमेंट आपकी प्रिंट नहीं होगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 3, थर्ड इंडेक्स पर है मेरे पास कैपिटल E। तो अब कैपिटल E के लिए फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, तो दैट मीन्स डॉट लोअर, इस E को हम क्या कर देंगे, लोअर केस में। नेक्स्ट कैरेक्टर 2 S इज अपर, कंडीशन ट्रू, तो लोअर फंक्शन इस S को किस में कर देगा, लोअर केस में। नेक्स्ट इंडेक्स पर है B, ये B मेरा किस में आ जाएगा, लोअर कैरेक्टर मीन्स लोअर केस में, राइट। अब बात आती है C की, ये मुझे एग्जीक्यूट नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल बिगिनिंग में ही बता दिया था, जो मेरे कैरेक्टर्स मुझे ट्रेवर्स करने हैं, दैट विल बी फ्रॉम लास्ट A टू दिस B। 0 इज माई स्टॉप वैल्यू, तो दैट मीन्स स्टॉप वैल्यू आपके इंक्लूड नहीं होती, वो एक कम तक चलेगा, राइट। और अब 0 से कम वैसे -1 है, बट स्टेप वैल्यू कितनी है, -1, राइट। इसके लिए आपको एक मैंने रेंज फंक्शन किस तरीके से, अगर कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज गिवन है, वो वीडियो सेपरेटली ही आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड दैट, डू वॉच दैट वीडियो आल्सो, राइट। Now let's check our answer. Is this correct or not? This is the same code, right, which I have executed, जिसको हमने solve किया था. Now this is the answer, right? You can check it out. हमारा भी यही आंसर आया था. That is at the rate I, at the rate N, I, at the rate capital A, then at the rate I, at the rate I, D, E, S, B, right? C जो है वो मेरा include नहीं होगा. इफ लेट सपोज अगर मैं अपने पाइथन के कोड में यहाँ पर ही चेंज कर दूं 0 की जगह -1, तो -1 मीन्स अब वो मेरा 0 तक चलना चाहिए, तो 0 तक चलेगा तो यहाँ पर मेरा C भी प्रिंट होगा, डेफिनेटली होगा, राइट।
बट अगर क्वेश्चन की बात करें तो वहां पर मुझे यहाँ पर -1 नहीं गिवन, 0 इज देयर. अकॉर्डिंग टू दैट this is our final answer, right? So I hope this question and the concepts related to this question are crystal clear now. If still you are having any doubt, you can write it in the comment section. And if you like my video, do press the like button and share your views in the comment section. Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep smiling, keep studying.